The only person you have to compare yourself with is the person you were yesterday. You are sitting in your classroom. Boards are approaching. Your parents are asking you to prepare for engineering, medical, or CA, and you are sitting there thinking about design as a career. फिर तुम्हें थॉट आता है कि काश मैंने पहले ही डिज़ाइन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया होता, बट आई थिंक ये रिग्रेट तुम्हें नहीं होगा बिकॉज यू हैव ऑलरेडी क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो एंड यू विल बी वॉचिंग दिस टिल द एंड। इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा दैट यू नीड टू नो फॉर UC 2027। Hi, my name is Devansh. I'm the founder of Divergent Classes, a community of design aspirants that has helped more than 3,000 design aspirants. Today, I'm going to answer each and every question for you. How do I get into IITs for design? How can you get in the top 100 AIRs this year? ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं है, ना इसमें कोई वेग आंसर्स है। This is the actual step-by-step roadmap that you need to follow. You have something that most of the UC aspirant appearing this year won't have. 8 focused months are completely enough to completely transform your level. Most aspirant waste these months confused, but you won't. In this video, I'm going to show you what UCET actually is, the exact exam structure, how to study, what to ignore, how to balance school and prep, and complete 8-month roadmap to crack UCET. So जल्दी से attentive हो जाओ and let's start the video. सबसे पहले let's understand what exactly is UCET. UCET stands for Undergraduate Common Entrance Examination for Design. इसको IIT बॉम्बे हर साल कंडक्ट करवाता है. Through this program, students get admission into BDES programs in these colleges: IIT Bombay, IIT Guwahati, IIT Hyderabad, IIT DM Jabalpur, IIT Delhi, IIT Roorkee. इस साल हो सकता है IIT कानपुर भी ऐड हो जाए। UCET के बारे में और जानने से पहले ये समझते why do you need to crack UCET? क्योंकि UCET सिर्फ एक एग्जाम नहीं है, it is a different path to achieve IIT because it's not just a design degree. डिजाइन का कोर्स तुम कई सारे कॉलेज से कर सकते हो, बट IITs में पहुंचना is a different level. The exposure, the opportunities, internship, placements are on a completely different level. The students from IITs work in different fields: UI UX design, product design, animation, automotive design, filmmaking, branding, gaming, entrepreneurship. Top companies directly recruit from IITs. And here's the important part: most students preparing for UCET are not consistent. Many students start very late. वो ये सोचते रहते हैं कि डिजाइन एग्जाम ही तो है, ये तो बहुत आसान है, 20-22 हजार बच्चे हैं, मैं तो AIR1 ऐसे ही आ जाऊंगा। भाई ऐसा नहीं होता है। At Divergent Classes we have also covered the journeys of our UCET aspirants and toppers. तुम उनकी जब जर्नी देखोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा किस लेवल ऑफ हार्ड वर्क एंड कमिटमेंट चाहिए IIT से पहुंचने के लिए। माना कंपटीशन कम है, बट परसेंटेज वाइज सक्सेस रेशियो आज भी उतना ही है। इवन JEE से भी थोड़ा सा टफ है। सो एक चीज तो मन में ठान लो कि आज से स्टार्ट करना है, नॉट टुमारो, ना एक हफ्ते बाद, ना एक महीने बाद। टुडे इज योर स्टार्टिंग डेट। चलो स्टार्ट करने से पहले लेट्स अंडरस्टैंड एग्जाम स्ट्रक्चर फर्स्ट। UCET हैज 2 पार्ट्स। पार्ट A, which is computer based, duration 2 hours, and it consists of 200 marks, NAT, MSQ and MCQ questions. Numerical ability type questions में कोई negative marking नहीं होती है, and you have to type that answer out. हमेशा attempt करने हैं, but usually ये question थोड़े से difficult लगते हैं ज़्यादातर aspirants को। MSQ, multiple select questions, इसके अंदर एक से ज़्यादा options सही होते हैं, and even इसमें negative marking भी है and partial marking भी है। इसके अंदर बहुत carefully option को select करना है, because इसमें UCET aspirants सबसे ज्यादा मैसअप करते हैं, एंड ये पार्ट तुम्हारी रैंक छीन सकता है। जब तुम मॉक दोगे ना, तब पता चलेगा असलियत में। MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके अंदर भी नेगेटिव मार्किंग है, as well as you have to choose a single correct option. अब देखो इस वीडियो के अंदर मैं हर क्वेश्चन के टाइप या स्पेसिफिक तरीके से नहीं डिस्कस कर रहा हूँ। I have already covered that in the syllabus video. वो जाके चेक करो, as well as Divergent Class के चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, because वहाँ पे हम टॉपिक बेस्ड वीडियोस ला रहे हैं, which will help you a lot. अगर तुमने हमारी फ्री कम्युनिटीज को ज्वाइन नहीं करा, तुम क्या कर रहे हो? We share daily DPPs जो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, डिस्कॉर्ड पे हम कई सारे इवेंट्स एंड चीजें भी करवाते रहते हैं, एंड हमारे 11th, 12th एंड ड्रॉपर स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिक बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, जहाँ पे टॉपर्स फ्रॉम IIT बॉम्बे, NIT अहमदाबाद एंड अदर टॉप कॉलेजेस इन इंडिया प्रिपेयर यू फॉर दिस एग्जाम लाइव 1-1 इंटरेक्शन के साथ। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड, ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। पार्ट B,
इसके अंदर 2 क्वेश्चंस होते हैं। इसकी ड्यूरेशन 1 घंटा होती है, एज वेल एज इट कंसिस्ट ऑफ 100 मार्क्स। पार्ट बी को अटेम्प्ट करने के लिए हमें एक अलग से बुकलेट मिलती है। फर्स्ट क्वेश्चन स्केचिंग का होता है, जिसके अंदर यूजुअली एक क्वेश्चन दिया जाता है जो एक पर्सपेक्टिव या सीन ड्राइंग का होता है। दिस सेक्शन इंक्लूड्स स्केचिंग एंड डिजाइन एप्टीट्यूड। हमारी स्केचिंग एबिलिटी एज वेल एज टाइम मैनेजमेंट स्किल्स बहुत मैटर करती हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर तुम्हारी प्रेजेंटेशन, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूजर अंडरस्टैंडिंग बहुत मैटर करता है। इसको हमने डिटेल में कवर कर रखा है और वीडियोस में, सो उसको जरूर देखना। वी ऑल्सो हैव अ यूसीट प्लेलिस्ट, सो फील फ्री टू विजिट दैट। देखो, एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है स्टूडेंट्स के अंदर। उनको लगता है कि पार्ट बी तो सीखा ही नहीं जा सकता, जो बचपन से अच्छा है वही इंप्रूव कर सकता है। चलो ये स्केचेस देखो, तुम्हें कैसे लग रहे हैं? बहुत ही खराब लग रहे हैं। इस स्केचेस पे तो यूसीट क्वालिफाई नहीं होगा, राइट? अब इन्हीं बच्चों के स्केचेस तुम 6 से 8 महीने बाद देखो, डिफरेंस दिख रहा है। इस साल डाइवर्जेंट क्लासेस से 4 बच्चों ने 80 प्लस स्कोर करा है, जो यूसीट के सबसे हाईएस्ट स्कोर है। मतलब दे हैव स्कोर्ड लाइक 0.1% ऑफ द एस्पिरेंट। समझ रहे हो कितना इंप्रूवमेंट हो सकता है इन दिस टाइम? बट हाँ, 50-60 तक पहुंचना विद राइट डायरेक्शन एंड गाइडेंस आसान है, बट 60 to 80 वाली जर्नी बहुत कम लोग अचीव कर पाएंगे। बट हमारी कम्युनिटीज एंड ग्रुप्स पे these toppers are always guiding you how they scored this much, as well as तुम्हारे हर स्केच को रिव्यू करके बताते हैं तुम्हें कहाँ पे और कितना इंप्रूव करना है ना? बहुत क्रेजी बात। हमने ट्राई करा कि हम सारी चीजें इतनी आसान कर दें कि कोई एक्सक्यूज बचे ही ना टू क्रैक यूसीट। चलो अब डिकोड करते हैं सिलेबस को। अब देखो, इसमें स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं। वो लोग सब चीजें इक्वली पढ़ते हैं, बट ये स्मार्ट प्रिपरेशन का तरीका नहीं है। ये तो हर कोई कर लेगा, बिकॉज यूसीट का सिलेबस को ढंग से डिफाइंड नहीं है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड पीवाईक्यूज पे फोकस करो। तुम्हारी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने यूसीट के क्वेश्चंस कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कैटेगरी, विजुअलाइजेशन एंड स्पेशल रीजनिंग, वन ऑफ द बिगेस्ट सेक्शन इन यूसीट। इसके अंदर कुछ इस तरीके के टॉपिक्स आते हैं: मेंटल रोटेशन, 3D विजुअलाइजेशन, मिरर इमेजेस, क्रॉस सेक्शंस, सरफेस डेवलपमेंट। इसके अंदर डेली प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज इस सेक्शन से काफी सारी चीजें आती हैं। सेकंड, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। इसके अंदर कुछ इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं: सीक्वेंसेस, पैटर्न्स, लॉजिक पजल्स, अरेंजमेंट्स, काउंटिंग। प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक नॉलेज, थिंग्स लाइक कैमरास, गियर्स, मटेरियल्स, ह्यूमन एर्गोनॉमिक्स, एवरीडे मैकेनिक्स। इस कैटेगरी के अंदर बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आते हैं यूसीट के अंदर। कैटेगरी 4, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी। यूसीट्स रिवॉर्ड ऑब्जर्वेशन। यूसीट के अंदर ऑब्जर्वेशन बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। एज अ डिजाइनर यू हैव टू ट्रेन योर आईज टू observe these things: shapes, patterns, layouts, fonts, design flaws, and even आसपास की normal everyday things. Fifth category, environments and society. इसमें कुछ इस टाइप के टॉपिक्स आते हैं: Indian crafts, कल्चर, सोशल अवेयरनेस, ज्योग्राफी बेसिक्स। सिक्स्थ कैटेगरी, डिजाइन हिस्ट्री एंड जर्नल अवेयरनेस। वैसे तो ये बहुत वास्ट टॉपिक है एंड इसमें कुछ भी आ सकता है, बट यूसीट में यूजुअली डिजाइनर्स, आर्ट मूवमेंट्स, लोगोस, विजुअल कल्चर्स पे क्वेश्चंस आते हैं। सो हाँ, ये है तुम्हारा सिलेबस। अगर तुम चाहते हो कि मैं लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न्स को एनालाइज करके एक प्रॉपर सिलेबस विद ईच टॉपिक सेग्रीगेटेड बेस्ड ऑन इट्स इंपॉर्टेंस, एक सिलेबस के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाओ, तो स्पैम कर दो सिलेबस वीडियो इन दी कमेंट्स। लाइक भी कर दो यार, मैं रात को 2 बजे इस वीडियो को बना रहा हूँ जस्ट फॉर यू गाइस। चलो अब आते हैं रियल रोड मैप पे। तुम्हारे पास 8 मंथ्स है, ना कि 2 साल। तो हमारी प्रिपरेशन की स्पीड थोड़ी सी फास्ट रहेगी। आई हैव डिवाइडेड दैट इनटू 4 सिंपलिस्टिक फेजेस फॉर यू। फर्स्ट फेज इज फाउंडेशन फेज, तुम्हारा जून जुलाई का महीना, जिसके अंदर तुम्हें सबसे पहले सारे रिसोर्सेज कलेक्ट करने हैं। बिकॉज ज्यादातर एस्पिरेंट्स पूरे साल भर नए रिसोर्सेज कलेक्ट करते रह जाते हैं एंड वो फोमो के चक्कर में एक रिसोर्स से दूसरे रिसोर्स हॉप ऑन करते रहते हैं। तो अपने रिसोर्स, चाहे वो कोचिंग से हो, चाहे वो मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो, या फिर तुम डाइवर्जेंट से रिसोर्सेज परचेज करो, एक बार लो, कलेक्ट करो, फिर चेंज मत करो। बेस्ट डिजाइन रिसोर्सेज पे भी मैं एक वीडियो बना दूंगा, जिससे कि तुम्हें अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कौन सी चीजें कितनी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड थिंग जो तुम्हें इस फेज के अंदर करनी है इज फोकसिंग ऑन पास्ट ईयर्स। अभी तुम्हें इनको सॉल्व करने पे फोकस नहीं करना है, पैटर्न को समझने की कोशिश करनी है, एज वेल एज किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एंड यूसीट का माइंडसेट क्या होता है। तुम अपना एक यूसीट ब्रेन डेवलप कर रहे हो, ना कि इनको रट्टा मार रहे हो। काफी बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते करते आंसर्स याद करते रहते हैं, ये सबसे खराब तरीका है। इस फेज के अंदर अगर तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम 1 दिन 2 दिन कितना भी टाइम लगाओ, बट उस क्वेश्चन को
सॉल्व करने की कोशिश करो। जब तक तुम अपने आप को स्ट्रगल करने का मौका नहीं दोगे, तब तक तुम उस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझ ही नहीं पाओगे एंड तुम हमेशा उस क्वेश्चन को गलत ही करोगे। एंड आई एम टेलिंग यू ऑल दिस फ्रॉम एक्सपीरियंस। इस फेज के अंदर तुम्हें कंसिस्टेंसी बिल्ड करने पे फोकस करना है, साथ साथ पार्ट बी के फाउंडेशंस पे वर्क करना है, जैसे कि लाइन प्रैक्टिस, ह्यूमन एनाटॉमी, पर्सपेक्टिव्स, शेप्स एंड फिगर्स, ऑब्जर्वेशन एक्सरसाइजेस, लाइव स्केचिंग। अभी तुम स्पीड चेज नहीं कर रहे हो, यूसीड के लिए ग्राइंड करने की हैबिट बिल्ड कर रहे हो। कभी भी एक से ज्यादा दिन मिस मत होने देना, वरना तुम्हारी पूरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाएगी एंड तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि पूरा एक हफ्ता कहाँ चला गया। दैट इज व्हाई आई हाईली रिकमेंड कि तुम कोई मेंटरशिप प्रोग्राम साइड बाय साइड ज्वाइन कर लो या फिर हमारी फ्री कम्युनिटीज को ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग सिमिलर चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं एज वेल एज वो सिमिलर चीजों पे वर्क कर रहे हैं। तो तुम्हारे लिए स्टडी पार्टनर्स ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा एंड इवन एक स्ट्रक्चर आएगा व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर दिस डिजाइन एग्जाम्स। फेज 2 विच इज बिल्डिंग फेज। यहाँ पे तुम्हें अपने स्टडी आवर्स भी बढ़ाने हैं। अब तुम्हें फोकस करना है कि तुम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मास्टर कर रहे हो। मैकेनिकल रीजनिंग, स्पेशल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, फाउंडेशंस ऑलरेडी बिल्ड कर लिए एंड नाउ तुम्हें एडवांस फेज में शिफ्ट करना है। बाय द वे, सारे पास्ट ईयर्स हमारे प्लेटफॉर्म पे फ्री में अवेलेबल है, तो जाके टाइमली मैनर में सेम यूसीड वाले इंटरफेस के साथ अटेम्प्ट कर सकते हो एंड अपने आप को कंपेयर भी कर सकते हो विद अदर एस्पिरेंट्स। अब तुम्हें जितने भी क्वेश्चंस करने इस फेज के अंदर विल बी अंडर टाइम एंड इस फेज के लास्ट वीक में तुम्हें अपना पहला मॉक अटेम्प्ट करना है। फेज 3 एक्सेलरेशन। इस टाइम पे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी हाईएस्ट होनी चाहिए, तुम्हारा ऑलमोस्ट सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी तुम्हारा फोकस है एक्यूरेसी एंड स्पीड अचीव करना और तुम हर वीक एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट दे रहे होगे इस टाइम पे और तुम सिर्फ और सिर्फ अपने वीक एरियाज को इम्प्रूव करोगे और अपनी स्ट्रेंथ्स को मेंटेन करोगे। मॉक का एनालिसिस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। काफी सारे लोग सिर्फ मॉक्स देते रह जाते हैं बट उनका एनालिसिस कभी करते ही नहीं है एंड इवन मार्केट में हाई क्वालिटी मॉक्स भी नहीं है। और डाइवर्जेंट क्लासेस पे जितने भी मॉक्स हैं आईआईटीएंस एंड एनआईडीएंस ने बनाए हैं, एज वेल एज वी आल्सो प्रोवाइड लाइव डिस्कशन ऑफ दीज मॉक्स, जिससे कि तुम टॉपर्स की टिप्स एंड ट्रिक्स जान पाओ और वो सेम माइंडसेट के साथ एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर करके आओ। फेज 4 रिवीजन। दिसंबर जनवरी के टाइम पे तुम कोई नई टेक्निक नहीं सीखोगे, ना कि कोई नई रिसोर्स पे रिलाई करना है। इवन अपने स्टडी आवर्स को थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि इस फेज में सबसे ज्यादा प्रेशर होता है और तुम्हें बर्नआउट होने का सबसे ज्यादा चांसेस इसी फेज में है, क्योंकि तुम 5 दिन तक 10 घंटे मेहनत करोगे बट फिर एक हफ्ते ऐसा बर्नआउट आएगा कि तुम्हारे मार्क्स, कॉन्फिडेंस, सब चीजें डिक्लाइन करना स्टार्ट हो जाएगी एंड ये चीज 60% एस्पिरेंट्स के साथ होता ही होता है। सो बर्नआउट फेज इज रियली नॉर्मल, सो उसको प्लान करके रखना प्लीज, वरना तुम बहुत कुछ लूज कर दोगे। इस फेज के अंदर हम अपनी स्ट्रैटेजी फाइनलाइज कर चुके हैं कि आज अगर यूसीड होता है तो हम इतने स्कोर करेंगे, बट इस बार हम अपनी मिस्टेक्स को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट हैं, बिकॉज अगर हमने अभी मिस्टेक सही नहीं करी तो बहुत चांसेस है कि हम यूसीड में भी वही मिस्टेक्स करके आएंगे। इस फेज के अंदर वी विल बी ऑल्सो हेल्पिंग यू आउट हाउ टू बिल्ड दैट माइंडसेट, कैसे उस मेंटल स्टेट के साथ एग्जाम के अंदर परफॉर्म करें, एज वेल एज कॉन्फिडेंट होके सब कुछ करके आए। यहाँ पे पैनिक बिल्कुल नहीं करना है, एज वेल एज अपनी हेल्थ एंड स्लीप का बहुत ध्यान रखना है। सो दैट वाज इट फॉर द स्ट्रैटेजी पार्ट। अभी एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम स्कूल को और यूसीड को कैसे मैनेज करें, क्योंकि दोनों ही एक अलग डायरेक्शन में जाते हैं एंड टाइम लिमिटेड है एंड इवन पेरेंट्स एंड तुम्हारी खुद की एक्सपेक्टेशन है कि दोनों को ही बैलेंस करना है, अच्छा परफॉर्म करना है। बट तुम्हें मैं एक हार्ड ट्रुथ बताता हूँ, जितने भी टॉपर्स डाइवर्जेंट से निकले हैं या फिर जितने भी मेंटर्स हैं हमारे पास, ऑल ऑफ देम हैज प्रायोरिटाइज यूसीड ओवर स्कूल, क्योंकि तुम्हारे 12th के मार्क्स तुम्हारा फ्यूचर नहीं डिसाइड करेंगे बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कैन डिसाइड योर कॉलेज एंड इवन अच्छी रैंक लाके तुम प्राइवेट कॉलेजेस में 25 से 30 लाख तक की स्कॉलरशिप भी ले सकते हो एंड कुछ कॉलेजेस में तो 100% ऑफ भी मिल जाता है। तो यूसीड के अंदर रैंक लाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बट स्टिल अगर तुम कंसिस्टेंट हो विद एवरीथिंग तो तुम मैनेज कर सकते हो। देखो मैं तुम्हें जेन्युइनली बताता हूँ, अगर तुम्हें बोर्ड्स के लिए मार्क्स लाने हैं तो स्टार्टिंग से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, एंड पे मत टालो, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि प्री बोर्ड्स पे डाल देते हैं
तुम ये सोच के चलो कि तुम्हारा एग्जाम जून या जुलाई के एंड में है, सो इनिशियल मंथ में इतना सिलेबस कवर कर लो, बाद में जब यू सीट का पीक टाइम है तुम्हें बोर्ड्स का प्रेशर ना हो, क्योंकि तुम दिसंबर जनवरी में बोर्ड्स को भूलना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो यूसीट में स्कोर करना। और बोर्ड्स इतना मुश्किल नहीं होता है। लास्ट टाइम पे जितने भी पास्ट ईयर्स हैं, फिर कोई ट्यूशन टीचर को पकड़ लेना और उनसे बोलना एक क्रैश कोर्स दे दें। और लोकल ट्यूशन टीचर्स को भी पता होता है कौन से क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे। कुछ चीजें रिसोर्सेज तो हम अपने बैचेस में भी शेयर कर देंगे, इससे कि तुम्हारी हेल्प हो जाए। और अगर तुम स्कूल जाते हो तो प्लीज अटेंटिवली क्लासेस को अटेंड करो एंड होमवर्क को करो, एंड स्कूल के अंदर सिर्फ और सिर्फ बोर्ड्स को पढ़ाई पे फोकस करो और घर आके यूसीट के लिए। यार हो सकता है तुम 12th में इतने मजे ना कर पाओ, बट सोचो कि तुम्हारे आने वाले 4 साल कितने एक्साइटिंग रहेंगे, एज वेल एज तुम्हें एक साल ड्रॉप भी नहीं लेना पड़ेगा। तो आई थिंक ये वर्थ इट है। तुम्हें सब कुछ सैक्रिफाइस करने को मैं बोल भी नहीं रहा हूँ, जस्ट कुछ टाइम के लिए फोकस हो जाओ। लेट्स कम टू कॉमन मिस्टेक्स ट्रीटिंग यूसीट लाइक जेई। काफी लोग सोचते हैं तो आईआईटी बॉम्बे कंडक्ट करवाता है तो ये जेई की तरह ही होगा। यूसीट की रैंडम बुक्स खरीद लो, क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाए जाओ, प्रीवियस ईयर रट के चले जाओ। भाई ऐसा नहीं होता है। यूसीट बहुत ही अलग एग्जाम है। मिस्टेक नंबर 2, फोकसिंग ऑन द पार्ट यू आर गुड एट। ज्यादातर लोग अगर पार्ट ए में अच्छे हैं तो पूरे साल पार्ट ए ही करते रहते हैं, अगर वो पार्ट बी में अच्छे हैं तो पूरे साल पार्ट बी ही करते रहते हैं। यूसीट में ज्यादातर टॉपर्स एक बैलेंस स्कोर लाते हैं, ना कि वो एक चीज में बहुत ही एक्सेप्शनल होते हैं। ज्यादातर लोग की मिस्टेक करते हैं कि दे इग्नोर पार्ट बी एंड थिंक कि उनका पार्ट ए स्कोर इतना इम्प्रूव हो जाएगा कि पार्ट बी स्कोर एक बैलेंस भी आ जाए तो आईआईटी में पहुंच जाएंगे। बट ऐसा नहीं होता है, बिकॉज यूसीट काफी अनप्रेडिक्टेबल है। हो सकता है पार्ट ए का एग्जाम थोड़ा हार्ड आ जाए एंड पार्ट बी का एग्जाम थोड़ा इजी आ जाए, तो आपने तो प्रिपरेशन करी नहीं थी पार्ट बी की। दैट इज वाई दोनों चीजों के अंदर मास्टरी करो, एंड आई थिंक 8 मंथ के अंदर वो अचीवेबल है। हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा अगर आपका कोई स्केचिंग एक्सपीरियंस नहीं है। मिस्टेक नंबर 3, नॉट अटेम्प्टिंग मॉक्स एंड आफ्टर अटेम्प्टिंग मॉक्स नॉट एनालाइजिंग देम। ज्यादातर स्टूडेंट्स यही करते हैं, मॉक्स को या तो प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरह करते हैं या फिर उनको असाइनमेंट्स की तरह। भाई मॉक्स इज लाइक यूसीट। अगर आज मैंने यूसीट दिया तो मेरे कितने मार्क्स आएंगे, मैं लीडर बोर्ड में कहाँ रैंक करता हूँ, इस माइंडसेट के साथ मॉक देना होता है। वो सेम प्रेशर फील होना चाहिए। अगर तुम उसके बिना मॉक दे रहे हो तो यू आर वेस्टिंग दिस मॉक। उसको एनालाइज करे बिना और अपने मिस्टेक्स पे बिना वर्क करे नेक्स्ट मॉक देना, इट्स जस्ट एक्टिंग आउट ऑफ फोमो। मिस्टेक नंबर 4, पैनिकिंग अबाउट जीके एंड डिजाइन थ्योरी। अब देखो रिसेंटली लास्ट 2-3 सालों से यूसीट के अंदर एनआईडी जैसे जीके एंड जेनेरिक क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। उन सब चीजों को हम बैचेस में भी कवर करवाते हैं, रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं। लास्ट टू लास्ट ईयर पैटर्न एकदम से चेंज हुआ था एंड कई सारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं था कि इतनी जीके आ जाएगी। मोस्ट ऑफ देम पैनिक्ड एंड उन्होंने अपना पेपर खराब कर लिया। बट द रैंकर्स फ्रॉम डाइवर्जेंट क्लासेस फोकस्ड ऑन ओनली ऑन दैट पार्ट जो उनको अच्छे से आता था, एंड दे आर इन आईआईटी बॉम्बे। रुद्र भैया की बात कर रहा हूँ मैं, ऑल इंडिया रैंक 8, उसका तो पॉडकास्ट भी ऊपर है, देख लेना। वैसे मैंने इस वीडियो में कुछ ज्यादा ही प्रमोशन कर दिया है, बट चलता है यार, वैल्यू भी तो दे ही रहा हूँ, ठीक है ना। 5th एंड सबसे बड़ी मिस्टेक, comparing yourself with others। मेरा एक फेवरेट कोट भी है, the only person you have to compare yourself with is the person you were yesterday। क्या तुम आज कल से बेटर हो? अगर हाँ, you are winning in life। ज्यादातर लोग या तो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करेंगे या अंडर एस्टिमेट करेंगे। मॉक से अदर चीजों में हो सकता है तुम्हारे मार्क्स ना आ रहे हो, बट you always have time and never give up। I know for a fact हर कोई ऑल इंडिया रैंक 1 नहीं आ सकता है, बट हमारा ऑब्जेक्टिव इज टू स्कोर द मिनिमम रैंक वी कैन, जिससे कि हमें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले एज वेल एज अच्छे कॉलेजेस में स्कॉलरशिप मिले। तो हमारा काम सिर्फ और सिर्फ अपना बेस्ट देना है, ना कि कंपेयर करना। आई थिंक मैंने सारी चीजें कवर कर ली हैं। मेरे को तो ये वीडियो बनाने में बहुत मजे आए। डू लेट मी नो तुम लोगों को वीडियो कैसी लगी है, और वीडियोस चाहिए तो वो भी बता दो। एंड सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। इवन तुम डाइवर्जेंट के ऑफिशियल नंबर पे मैसेज या कॉल भी कर सकते हो और चीजें जानने के लिए। यू वुड लव अगर तुम हमारे बैचेस ज्वाइन करो, और अगर ज्वाइन नहीं भी कर पा रहे हो, तुम हर मंथ बहुत सारी ट्रायल क्लासेस करवाते हैं, ट्रायल क्लासेस से सीख लो, एज वेल एज जो हम फ्री रिसोर्सेज या डीपीवी शेयर करते हैं वो भी तुम्हारे बहुत हेल्पफुल रहेगा। एंड ऐसी वीडियोस तो मैं लाते ही रहूंगा, जिससे कि आई कैन हेल्प यू गाइज एंड तुम्हारे सर से थोड़ी सी टेंशन दूर हो, क्योंकि मुझे तो मेरे टाइम पे पता है कि भाई कितनी टेंशन थी 12th में। एंड एक और चीज, भाई तुम्हारे दोस्त, मम्मी पापा या जो भी आसपास के सराउंडिंग है ना, वो तुम्हारे ड्रीम को, तुम्हारे पैशन को नहीं समझेंगे, तो उनको समझाने की भी जरूरत नहीं है।
बिकॉज यू नो वॉट यू वॉन्ट एंड यू नो हाउ यू विल अचीव इट। तो ये अगर सैक्रिफाइस या चीजें भी करनी पड़ रही ना, तो ये तुम अपने लिए कर रहे हो ना, इसके लिए तुम्हें किसी से वैलिडेशन लेनी चाहिए ना किसी को देनी चाहिए। जस्ट कीप वर्किंग हार्ड, बस अगले 6 से 8 महीने सर नीचे करके काम करना है। एंड आई नो फॉर अ फैक्ट, अगर तुम अपना बेस्ट देख के आओगे ना, तो तुम्हें कोई चीज का रिग्रेट नहीं होगा। एंड एज अ बड़े भाई एक एडवाइस सुन लो भाई, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें सपोर्ट करे इन दिस करियर, तो तुम उन्हें प्रूव करके दिखाओ, तब वो तुम्हें हमेशा सपोर्ट करेंगे। दे जस्ट डोंट वांट यू टू फेल। और तो उनको बता दो कि आईआईटीज में भी एडमिशन होता है, तो वो शायद मान जाए। ओके देन, बाय बाय, लव यू ऑल एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओए, टांग टूट गई भाई इसकी।